ਮੁਨਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਸਪੀਡਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੀ ਕਰੈਕਟ, ਇਟਸ ਦੀਵਾਲੀ ਐਂਡ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦਾ ਕੰਬਾਈਨਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 7000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੂਥ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬੂਥ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਥ, ਫੂਡ ਦੇ ਬੂਥ, ਪੂਰੀਆਂ, ਛੋਲੇ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ 7000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮਨਰੋ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਪਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। My name is Nidhi Mehta. I am one of the executive team members for Utsav USA and I have been with them for last 5 years. Today we are organizing a very grand event, Utsav Diwali. It's a huge event put together by volunteers and sponsors, a free event where there is a puja going on right now. We just finished with our cultural programs. There were so many performers and people enjoyed it very much. And right now we have a puja going on and then we'll have Ram Leela, Ravan Dahan as well as fireworks. It's just bringing all the community together. It's so nice to see everyone here with the spirit of Diwali, which is the true spirit of Diwali, which is togetherness, celebration, joy and lot of smiles. ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੋਣੀ ਆ ਹੁਣ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ ਸੀਟਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ। मैं उत्सव प्रोग्राम में आई हूँ और यहाँ रामलीला होने वाला है। मैं जब भी देखना है रामलीला और सब प्रोग्राम बहुत अच्छे से चल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਖਰੀਦਣ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਪੂਰੇ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। हाँ, मैं योगा टीचर हूँ, योगा सिखाता हूँ स्वामी रामदेव का। हाँ, हरिद्वार जाके टीचर बन के आया। अच्छा, मैं इसका सुना मेला का, तो मेला में मुझे मिलना था। हाँ, क्योंकि नेक्स्ट ईयर प्लानिंग कर रहे हैं दिवाली का, तो गरबा वगैरह करना है तो कितने पॉपुलेशन सब लोग आ सकते हैं नहीं, इसलिए यहाँ देखने को आया था। अच्छा, थैंक यू। हाँ जी, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਹੈਲੋ। ਪੰਜਾਬ ਗਰੋਸਰੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬੜੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। बात है भाजी, क्या ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। भाई समोसे साढ़े अंदर जा रहे हैं, ड्यूटी रखी टोकन है ना। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਅਸਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਆ ਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਨੰਦ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗਰੋਸਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅੱਜ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਪਲੀਜ਼। रबड़ी जलेबी।
Next window. One samosa with jalebi prepared and one pani puri. Hi, I'm Stonebridge County Council Member Sam Lowe and State Representative in the 39th. I want to welcome Diwali here to the Evergreen State Fairgrounds. This is a very welcoming and inclusive event. We're so excited to host this year here at the fairgrounds, and this is going to be an exciting celebration. I look forward to the fireworks to come and everything else. And again, I want to thank everybody for coming and supporting this great event. Thank you. Thank you so much for those who raised your hands. Yes, these events are only possible with the donations as well as all your support. The one big thing that we noticed, because we have been working tirelessly from yesterday in this venue, is that we do also need volunteers. We need community members to step up and make this event possible. Look at the crowd. If you turn around and you see so many people together, I think this is the biggest Diwali event I have been part of, and I have been living in the Seattle city. I'm loving the light that I'm seeing in this room today. Now we do have some time to set up for our Ram Leela, which will be starting. I know you guys are very excited about it. The performances in the afternoon were rocking, and Ram Leela will take it to a next level. And with that, I will hand over the stage to the presenter, Vasudha, who is putting this together. I think they will need few minutes to do the setup. So again, please be patient. And in the meantime, just smile, look at each other. उन्हें एक धातु के टकराने की आवाज आई। राजा जनक ने देखा कि सीत के कलश में एक कन्या खड़ी हुई है। उस कन्या को जैसे ही राजा जनक ने निकाला तो राज्य में बारिश हो गई, पूरा राज्य खुशहाल हो गया और उस कन्या को राजा स्नेहपूर्वक अपने घर ले आए। सीत के कलश में पानी के कारण उस कन्या का नाम सीता रखा गया। आइए देखते हैं राम और सीता के विवाह की घड़ी। मिथिला के राजा जनक द्वारा सीता के लिए स्वयंवर संयोजित किया गया। देखिए माता सीता पहुंच गई हैं हमारे समक्ष जनक जी के साथ, और ये उनके स्वयंवर की घड़ी है। जनक जी ने धनुष को शिव धनुष में जिससे प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी व्यक्ति से विवाह की शर्त रखी। इस आयोजन में कई राज्यों के राजकुमार आए। राम और लक्ष्मण भी आए ऋषि विश्वामित्र के साथ। सभी ने बहुत प्रयास करा किंतु कोई भी धनुष हिला ना सका। परंतु जब प्रभु श्री राम की बारी आई तो उन्होंने बहुत ही आदर के साथ धनुष को प्रणाम करा और एक ही हाथ से धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करा, पर धनुष टूट गया और उन्होंने स्वयंवर की
लक्ष्मण के पास जाओ। नटखट राजकुमार, तुम तो इस जगत में सबसे सुंदर हो, क्यों ना हम और तुम विवाह कर ले? मैं तो राम का सेवक हूँ, सेवक से विवाह करके क्या दासी बनोगी? आप ही मेरे स्वामी बन जाइए। देवी, मैंने तो एक पत्नी व्रत किया हुआ है, क्यों ना तुम फिर से एक बार लक्ष्मण से पूछो। तुमने मेरा अपमान किया? तुमने इस वनवासिनी स्त्री के लिए मेरा अपमान किया? तो ठीक है, मैं इस वनवासिनी का ही वध कर देती हूँ। भैया! चेहरा लहू लुहान हुआ, बता पहना सूप लगा, कहाँ तेरा संग्राम हुआ? भैया, देखिए उस वनवासिनी स्त्री के देवर ने ये क्या कर दिया? भैया, वो सुंदरी आप ही के योग्य है, वो आप ही के योग्य है भैया, वो आप ही के योग्य है। जब मारीच को माता सीता ने देखा तो उन्होंने प्रभु श्री राम से उन्हें पकड़ के लाने को कहा। देखिए कितना सुंदर, अद्भुत और स्वर्णिम यहाँ भ्रमण कर रहा है। क्यों आप इसे ले लिए इस कुटिया में ले आए? अति सुंदर प्रिय, किंतु तुम इसमें क्या करोगी क्या? मैं इसके साथ खेलूंगी, इसे हरी हरी घास खिलाऊंगी, इसका पालन पोषण करूंगी स्वामी। ठीक है सीते, मैं इस मीट को तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। लक्ष्मण, जब तक मैं वापस न आऊँ तुम सीता को अकेले कुटिया में छोड़ के कहीं ना जाना। आज्ञा का पालन होगा भैया। लक्ष्मण, क्या तुमने ये स्वर सुना? हाँ माते, यह अवश्य ही कोई मायावी आवाज है। मायावी आवाज? नहीं लक्ष्मण, तुम्हारे भैया जरूर किसी संकट में हैं। संकट? तीनों की नाथ को संकट हरने वाले को संकट? नहीं भाभी, यह अवश्य ही कोई मायावी आवाज है। लक्ष्मण, मुझे विश्वास है ये मेरे स्वामी की आवाज है। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, तुम अभी के अभी उनकी सहायता के लिए जाओ और उन्हें यहाँ लेकर आओ। लक्ष्मण, ठीक है भाभी, अगर आप यूं ही मुझे विवश करती हैं तो मैं ये लक्ष्मण रेखा खींच के जाता हूँ। कसम है आपको मेरी, इसको लाद कर बाहर मत आइएगा। इस प्रकार सीता लक्ष्मण रेखा में सुरक्षित थी। ये ब्राह्मण देव, आप जरा यही ठहरिए, मैं अभी भीतर जाकर आपके लिए भिक्षा लेकर आती हूँ। भिक्षा ग्रहण करें ब्राह्मण देव। देवी, मैं वन में चल कर बहुत थक गया हूँ, क्यों ना तुम मुझे भिक्षा यहीं पर आके दे दो। हे ब्राह्मण देव, मैं अपने देवर के वचनों से प्रतिबद्ध हूँ। मैं ये रेखा लांघ कर बाहर नहीं आ पाऊंगी। कृपया आप यहीं से भिक्षा ग्रहण कर लीजिए। ब्राह्मण बंदी हुई भिक्षा स्वीकार नहीं करते, तुम रेखा के बाहर आकर मुझे भिक्षा दो। मेरी दुविधा समझने का प्रयास करें ब्राह्मण देव, मैं अपने वचनों से बंधी हुई हूँ, मैं ये रेखा लांघ नहीं पाऊंगी। तो ठीक है, ये ब्राह्मण तुम्हारे द्वार से भूखा ही चला जाएगा, परिणाम सोच लेना। ब्राह्मण देव, क्रोधित ना हो, मैं अभी आती हूँ।
मैं कोई भिक्षुक नहीं, मैं लंकेश्वर हूँ, लंकापति रावण। और मैं तुम्हें आज जिसके नाम से समस्त संसार थर्रा उठता है, जिसके भय से देवता भी छिप जाते हैं, मैं वो लंका नरेश रावण हूँ, रावण। और मैं तुम्हें आज यहाँ से ले जाने आया हूँ। हनुमान किष्किंधा के राजा सुग्रीव की मानव सेना के मंत्री थे। राम और लक्ष्मण जब वन गुजर रहे थे तो ऋषिमुख पर्वत पर वो पहली बार हनुमान जी से मिले। जब रावण पुष्पक विमान से सीता माता को लेके जा रहा था तो सीता माता के निशाने, उनके आभूषण वानर सेना ने एकत्र कर लिए थे। जय श्री राम। और उन्होंने वो आभूषण प्रभु श्री राम को दिखाए। वो आभूषण देखकर प्रभु राम और लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राज दिया। हनुमान ने राम को वचन दिया कि वो समस्त वानर सेना के साथ सीता माता को ढूंढ निकालेंगे। जय श्री राम। आइए देखते हैं हनुमान जी ने आगे क्या क्या किया। हनुमान जी 100 योजन समुद्र लांघ कर किसी प्रकार से अशोक वाटिका पहुंचे। अशोक वाटिका जब वो पहुंचे तो वो स्तब्ध रह गए। क्या सोने की लंका थी, क्या वाटिका थी, क्या खूबसूरत जगह थी, परंतु उन्हें तो सीता माँ की तलाश थी। सीता माँ की खोज में वो जब निकले तो उनको सीता माँ वाटिका में एक वृक्ष के समक्ष मिले। मुझे प्रभु श्री राम ने भेजा है, मैं यहाँ आपको ले जाने आया हूँ। श्री राम ने, मेरे स्वामी ने, परंतु परंतु मैं कैसे मान लूं कि तुम्हें मेरे स्वामी ने भेजा है? माँ, ये देखिए, ये मुद्रिका स्वयं प्रभु श्री राम ने मुझे दी है और आपको कहा है कि आपको यहाँ से ले जाऊँ। जाओ पुत्र जाओ और मेरे स्वामी से कहना सीता सिर्फ उनकी है, उन्हें मेरी ये चूड़ामणि दे देना। उनसे कहना वो स्वयं यहाँ आकर मुझे इस रावण की कैद से छुड़ा कर लेकर जाए। माँ, ये मेरा सौभाग्य होता अगर आप स्वयं मेरे साथ चलती, परंतु आपका ये संदेश मैं प्रभु राम तक पहुँचा दूंगा। वो स्वयं यहाँ पाएंगे और रावण का वध कर आपको यहाँ ले जाएंगे। जली तो आग कहते हैं, बुझी तो राख कहते हैं। इस राख से बारूद बन जाए, इसे मेघनाद कहते हैं। पिताजी, जय शंकर की, जय भोलेनाथ। पिताजी, ये वानर हमारी अशोक वाटिका को तहस नहस करता था, इसलिए एक वानर को सबसे प्रिय उसकी पूंछ होती है। क्यों ना इसकी पूंछ में ही आग लगा दी जाए? आज्ञा का पालन हो। जो आज्ञा पिताजी। जैसे ही पूंछ में आग लगी, हनुमान जी बंधन मुक्त हो गए और पूरी जगह उपद्रव मचा दिया। सोने की लंका धू-धू करके जल उठी और सारी लंका को भस्म करने में वो लग गए।
राम का नाम लिख दिया और इस प्रकार वे सब लंका नगरी पहुँचे युद्ध के लिए। आइए देखते हैं लंका कांड। लंका कांड इस युद्ध में बहुत ही घमासान मचा और मेघनाथ ने लक्ष्मण पर शक्ति बाण से प्रहार किया, जिसके कारण लक्ष्मण मूर्छित हो गए और बड़ा ही विकट समय आ गया। इस समय हनुमान जी ने फिर अपना कर्तव्य पूरा करते हुए हिमालय की ओर कूच करा और वे संजीवनी बूटी की खोज में निकल गए, जो सबसे भीषण था राम और रावण का युद्ध। देखिए क्या होता है उसके अंत समय में, जब प्रभु श्री राम ने स्वयं ही रावण का संहार किया और उसे कैसे मृत्यु दे दी। मुझे लौटा दे, नहीं तो अपने परिणाम के लिए तू खुद उत्तरदायी होगा। एक वन वन भटकता वनवासी रावण को ललकार रहा है। जो अधर्म और असत्य के मार्ग पे चलते हैं उनका परिणाम कभी अच्छा नहीं होता रावण। दशानन को मृत्यु की चुनौती दे रहा है, जंग के लिए तैयार हो जा। तैयार हो जा रावण। जय भोलेनाथ। जय प्रभु राम। गुड़िया सिंह as Ramlila manager, Pooja Sharma as the stage manager, Vaibhav as a technical expert, Anika as Balika Sita. Give huge applause to our director Manish Goyal, who is the Lakshman. Thank you so much, Voice of Planet and Vasudha ji. She made this possible. I can't have any words to thank her. She is everything. She is writer of the dialogues, scripts. I don't have any words to say thanks. All of this possible because of her. Thank you, Arun ji. I know हमें समय की सीमा है. Thank you उत्सव for giving us the platform. आइए चलते हैं रावण दहन की ओर, बाहर की ओर.
first one will be the act of Robert the Head. And the act will start when I say that starts now. Does he deserve a big applause? He spent so much time and effort to make this. So we got a request from, we will not be able to start unless they sit down. So the people who are not sitting down are causing this total delay. 5, 4, 3. Ganesh, move around, move around, move around. Kusagara, you're in the middle, you're blocking. 2, 1, go! तो अगर आपको अच्छा लगा तो जोर से एक बार तालियां बजा के सबके लिए थैंक यू करता हूँ सबके वॉलंटियर Do you think we should do this more often? It will take a lot of effort and a lot of donations and a lot of people coming together. So हम ready हैं?